Let us continue the lesson. Page number 87 from the beginning. Page number 87 from the beginning. The receptionist was not the same girl who had booked him in, but the change was indefinitely for the better. वापस आया तो रिसेप्शनिस्ट में जो लड़की थी वो नहीं थी जब बुकिंग किया तब बैठी हुई थी. As he collected his key, he gave her his best smile, told her she would not be bothering with her breakfast, ordered the Daily Express, and asked for an early morning call at 6:45 a.m. Tomorrow was going to be another busy day. वापस होटल में आए, सोचा जल्दी जाके आराम करेंगे. रिसेप्शनिस्ट जो पहले बैठी थी वो नहीं थी. जो चेंज दिखाई दिया तो अच्छा हुआ, तो उसने उसको स्माइल मारा और उससे बोला ब्रेकफास्ट का ज़रूरत है ही नहीं, अखबार ज़रूर भेजना. 6:45 को मुझे जगा देना क्योंकि कल बिजी दिन है. He whistled softly to himself as he walked up the broad stairs. सीढ़ियाँ चढ़ते समय सीटी मार मार के चले गए. He would sort of liked the idea of being dressed up as a minister, dog collar and everything. Yes, it had been a jolly good idea for McCleary to wear 2 black fronts, 2 collars, but that top collar, it had kept on slipping off the back stud. Stud means button. And there had been that one panicky moment when McCleary had only just got his hand up to his neck in time to stop the collar springing apart before Stephen's. They had got the little problem worked out all night, though a pen stuck in the mouth whenever the evil eye had appeared at the peephole. Easy, but all the fiddling about under the blanket with the black front and the stud at the back of the collar, that had been for more difficulty than they had ever bargained for. Everything else had gone beautifully smoothly, though. In the car, he had found everything they had promised him: soap and water, clothes, the map. Yes, the map, of course. The Ordnance Survey map of Oxfordshire. He had got some good friends, some very clever friends. ऊपर चढ़ते समय ये सारी बातें एक बार और याद किया कि मैक्लेरी का रूम में जो इन्विजिलेटर आया वो कैसा था, उसने मेरे लिए क्या क्या व्यवस्था करके लाया, वो किस तरह से काम आया. फिर मेरा कुछ बाहर के दोस्त थे जो मुझे हर पल मदद करते रहते. ये सारी बातें याद करते 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 वो कमरे की ओर चला गया. He unlocked his bedroom door and closed it quietly behind him. दरवाज़ा खोल के अंदर आया और अंदर से दरवाज़ा लॉक किया. And then stood frozen to the spot. जब दरवाज़ा बंद करके मोड़ के देखा तो एकदम जम गया. Like a man who has just caught a glimpse of the garden. किसी भूतनी का सामने फंस गया हुआ किसी व्यक्ति का हाव भाव दिखाई दिया. Sitting on the narrow bed was the very last man in the world that he once had expected or wanted to see. वो इसलिए था भूतनी जैसा जो बैठा, वो इस दुनिया के सबसे डरावना खतरनाक लोग जिसका प्रतीक्षा था कि वो
उसको देखे, वही बैठा हुआ था। इट इज़ नॉट वर्थ ट्राइंग एनीथिंग सेड द गवर्नर क्वाइटली। तुरंत गवर्नर बोला, कोशिश मत करो भागने का। इसका मतलब उसके आने से पहले गवर्नर उसके कमरे में घुस के पलंग में बैठा हुआ था। As Ivan's eyes darted desperately around the room, I have got men all around the place. भागने का कोशिश मत करना, होटल चारों तरफ घेर लिया है। Well, there were only two really, but Evans need not know that. He let the words sink in. Women, too. Didn't you think the blonde girl in reception was rather sweet? लेडीज़ भी है। रिसेप्शनिस्ट में जो बैठा है ना, वो होटल का रिसेप्शनिस्ट नहीं है, वो पुलिस वाली है जो तुम देख के सीटी मार के मुस्कुरा के आए ना, वही है। वो भी हमारे आदमी है। ब्लोंड मतलब एनिमी वाले लेसन में भी बताया था, गोरी। अगर मेल गोरा है तो BLOND लिखता है, और फीमेल गोरे हो तो BLONDE, दोनों ब्लोंड पढ़ते हैं। इवांस वॉज विजिबली शेकन। इवांस एकदम शॉक हो गए। ही सैट डाउन स्लोली इन द ओनली चेयर द स्मॉल रूम कुड ऑफर। कमरे में एक ही चेयर, उसी में बैठ गया बेचारा। एंड हेल्ड हिज हेड बिटवीन हिज हैंड्स। दोनों हाथ के अंदर सिर दबा के बैठ गए। फॉर सेवरल मिनट्स देयर वाज अटर साइलेंस। कुछ समय तक किसी ने भी कुछ नहीं बोला। फाइनली ही स्पोक। इट वाज दैट ब्लडी करेक्शन स्लिप आई सपोज। अच्छा सर, तब समझ में आ गया, जो करेक्शन स्लिप था ना, जिसकी वजह से मैं दोबारा पकड़ में आया। वेल, the governor failed to mask the deep satisfaction in his voice. There are a few people who know a little German. लेकिन वो आश्चर्य दिखाना नहीं चाहा गवर्नर, बस वो इतना ही कहा, और भी लोग हैं जो जर्मन समझते। पहले ही बोला था ना, गवर्नर को थोड़ा टूटा फूटा जर्मन आता था। Slowly, very slowly, Evans relaxed. He was beaten and he knew it. इवान थोड़ा रिलैक्स हो गया, उसको पता पड़ गया अभी इसको पकड़ेगा, वापस जेल में डालेगा। एंड ही सैट अप एट लास्ट एंड मैनेज्ड टू स्माइल रूफुली। इसलिए सोचा टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं, तो बात यही होने वाला है। इसलिए वो थोड़ा बहुत मुस्कुराने लगा। यू नो, इट वॉज नॉट रियली ए मिस्टेक। यू सी, वी हैड नॉट बीन एबल टू फिक्स अप एनी होटल मीन्स होटल, बट वी कुड हैव वर्कड दैट सम अदर वे। हम तो सारे जगह ढूंढा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर होटल का नाम आ गया, तो वो भी इतना आसान नहीं था। नो, द रियली इम्पोर्टेंट थिंग वाज फॉर द फोन टू रिंग जस्ट बिफोर द एग्ज़ाम फिनिश्ड टू गेट एवरीवन आउट ऑफ द वे फॉर ए कपल ऑफ मिनट्स। लेकिन मदद वहाँ से हमें मिलना शुरू कर दी कि एग्ज़ामिनेशन के आखिरी में जो मैसेज मिला था ना, थोड़ी देर के लिए सब बाहर जाओ। सो वी हैड टू नो एग्जैक्टली व्हेन द एग्ज़ाम स्टार्टेड, डिडंट वी? इसलिए हमें पता था एग्ज़ाम का शुरू होने का टाइम, उससे कंपेयर किया, तब से पता पड़ गया कुछ न कुछ गड़बड़ी चल रही है। एंड लाइक ए फूल आई presented you with that little piece of information on the plate. Well, somebody did. So you see, sir, that correction slip killed 2 little birds with a single stone, didn't it? वो करेक्शन स्लिप ही सारा कारण का सबूत निकला। द नेम ऑफ द होटल फॉर मी, उसी पर्चे से मैंने होटल का नाम ढूंढ निकाला। एंड द एग्जैक्ट टाइम द एग्ज़ाम स्टार्टेड, और एग्ज़ाम का शुरू होने का टाइम भी उसमें से पता पड़ गया। द गवर्नर नोटेड, इट इज़ प्रिटी कॉमन वर्ड। हाँ, ये तो ऐसा ही था,
Good job, it is pretty common, sir. Or I had never have known where to come to, would I? हाँ, तो इसी की वजह से तो मुझे यहाँ जाना है, उसका आइडिया मिला. नाइस नेम दो, गोल्डन लाइन. एंड हाउ डिड यू नो विच गोल्डन लाइन इट वाज? देयर इज हंड्रेड्स ऑफ दम. तुम्हें पता पड़ेगा कि कौन सा गोल्डन लाइन है. इसी नाम से कई होटल है इधर. सेम एज यू वैंस, जैसे तूने समझ गया तो वैसे. इंडेक्स नंबर 313, सेंटर नंबर 271, थाना परचा में ये, उससे पता पड़ गया. रिमेंबर 6 figures. And if you take an ordnance survey map for Oxfordshire, you find that the 6-figure reference 313/271 lands you bang in the middle of Chipping Norton. अगर उसी डिजिट्स को कंपेयर करके अगर देखा जाए मैप के मदद से, ये पता पड़ेगा ये जो होटल है वो चिपिंग नॉर्टन का एरिया का जो होटल है. या यू आर राइट, वी हैड होप्ड यू वुड रन ऑफ टू न्यूबरी. हम तो पहले ये सोचा था कि तुम न्यूबरी की ओर भागेगा. वी डिड. हाँ, तो सही है. वेल, दैट इज समथिंग आई सपोज. दैट क्वेश्चन पेपर इवेंट्स, कुड यू रियली अंडरस्टैंड ऑल द जर्मन? आई कुड हार्डली. क्वेश्चन पेपर की बात तुम जर्मन जानते हो क्या पूरा? मैं तो इतना नहीं जानता. नहीं, ऑफ कोर्स आई कुड नॉट. आई नो रफली व्हाट इट वाज ऑल अबाउट. मुझे बिल्कुल ही ज़्यादा जानकारी नहीं है, थोड़ा बहुत आता है. बट वी जस्ट सपोज टू थ्रो ये फ्यू स्पैनर्स इन द वर्क्स. लेकिन हमने सोचा ये हमारा काम में मदद मिलेगा. यू नो, सॉर्ट ऑफ मडल एवरीबडी ए बिट. पता है ना तुम्हें, सब कहीं ना कहीं तरीक़े से कुछ डिसऑर्डर पेश करता है. द गवर्नर स्टूड अप. टेल मी वन थिंग बिफोर वी गो. एक बात बताओ, हाउ ऑन अर्थ डिड यू गेट ऑल दैट ब्लड टू पोर ओवर योर हेड? एक बात अभी तक समझ में नहीं आया. तूने जो ब्लड डालने का व्यवस्था किया ना, वो ब्लड कहाँ से मिला तुम्हें? इवान सडनली लुक्ड ए लिटिल हैप्पियर. क्लेवर सर, वेरी क्लेवर दैट वाज. सर बहुत सिंपल है. हाउ टू गेट ए कपल ऑफ पिंस ऑफ ब्लड इनटू ए सेल. एक सेल में किस तरह से खून लेके आया. व्हेन there is none there to start off with, and when the invigilator, shall we say, gets searched before coming in. Yes sir, you can well ask about that, and I do not know if I ought to tell you. After all, I might want to use that particular. देखो, अगर आप समझना चाहें तो मैं बता दूँ. शुरू से देख लो, आपने जो इन्विजिलेटर का चेकिंग किया था ना, उस समय से लेकर थोड़ा याद करो. एनीथिंग टू विथ ए लिटिल रबर रिंग फॉर पाइल्स परहैप्स. तो इन्विजिलेटर ने बोला पाइल्स की बीमारी है, जब मुझे बैठने का तकलीफ होता है मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ. कि इतना दिमाग नहीं लगा सकता था कि एक पाइल्स का मरीज इतना छोटा रिंग यूज़ कर सकता है नहीं कर सकता है? ये भी तूने सोचा नहीं. मान लिया उसने जो बोला एज इट इज. मस्ट हैव बीन ए ट्रिकी जोक स्टिकिंग ए कपल ऑफ पिन्स. यू हैव गॉट इट रॉन्ग सर. नो प्रॉब्लम अबाउट दैट. नो, इट इज़ द क्लोटिंग. यू सी, दैट इज़ द बिग ट्रबल. अभी भी डाउट हो रहे होंगे कि क्लोटिंग की मामला भी आ जाता है. एंड वी गॉट द ब्लड इजी इनफ. पिग्स ब्लड. हमने पिग का ब्लड यूज़ किया. इट वॉज फ्रॉम द स्लॉटर्स हाउस इन किडलिंगटन. हम उसको कसाई खाने से मिला. बट टू स्टॉप इट क्लोटिंग यू हैव गॉट टू मिक्स एक्चुअल ब्लड. क्लोटिंग नहीं होने के लिए एक्चुअल ब्लड मिक्स करना पड़ता है. Evans took a breath. With 1/10 of its own volume of 3.8% trisodium citrate. Didn't know that?
डिड यू सर? उसके अंदर 3.8% ट्राइसोडियम साइट्रेट मिक्स करो तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा। याद रखना 3.8% ट्राइसोडियम सिट्रेट ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है। The governor shook his head in a token of reluctant admiration. We learn something new every day. They tell me. Come on, my lord. हाँ, अच्छा हुआ, रोज़ हम कुछ नए नए चीज़ें सीख रहे। अब ब्लड क्लॉटिंग करने का तरीका और उससे बचने का तरीका हमने सीख लिया। Evans made no show of resistance and side by side the two men walked slowly down the stairs. बचने का प्रयास तो किया ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता है रिसेप्शनिस्ट से लेकर सारे लोग उसका ही होटल में भरा हुआ है, तो बचना संभव नहीं है। तो गवर्नर उसको लेके नीचे आया। Tell me, Evans, how did you manage to plan all this business? You have had no visitors. I have seen to that you have had no letters. Evans, एक बात बताओ, तूने ये सब कैसे दिमाग लगाया, कैसे एडजस्ट किया? क्योंकि तुम फुल टाइम तो जेल में था ही सही, कोई विजिटर्स नहीं आए तुमसे मिलने और तुम्हें कोई मदद करने भी नहीं आए, तुम्हारा बस सेल में कोई एंटर ही नहीं किया, तो फिर कैसे किया है सब कुछ? आई हैव गॉट लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स। तो अरे सर क्या बात कर रहे हो, कितने दोस्त हैं जो मिलने आते हैं मेरे से। व्हाट इज़ दैट सपोज्ड टू मीन? क्या मतलब? माई जर्मन टीचर फॉर ए स्टार्ट। बताऊँ, मैंने ट्यूशन लगाया था ना, मुझे पढ़ाने आता था ना, जर्मन टीचर, जर्मन सिखाने के लिए आया था ना, ट्यूटर। यू मीन, तेरा मतलब यही वही तुम्हारा आदमी था क्या? बट ही वॉज फ्रॉम द टेक्निकल कॉलेज, वो टेक्निकल कॉलेज से आया। वासी इवांस वॉज ऑलमोस्ट एंजॉइंग इट ऑल नाउ। एवर चेकअप ऑन God Almighty. There is far more going on than I always will be, sir. Everything ready? Asked the governor as they stood by the reception desk. बोलते 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 रिसेप्शन डेस्क में आया। The van's out the front, sir, said the pretty blonde receptionist. Evans winked at her. वो रिसेप्शनिस्ट को देखा। गवर्नर ने बोला वो अपना ही आदमी है, पुलिस वाला है। ये बात इवांस को पता था, लेकिन इवांस ने उसके पास में आके जानते हुए भी क्या किया, वो विंकिंग किया। विंक करना मतलब आंख मारना। एंड शी विंक्ड बैक एट हिम, वो भी वापस आंख मारी। इट ऑलमोस्ट मेड दिस डे, बस थोड़ा बहुत अच्छा लगा। ये साइलेंट पर्सन ऑफिसर, प्रिजन ऑफिसर हैंडकफ्ड द रिकैप्चर्ड इवांस। तुरंत एक प्रिजन ऑफिसर आके उसका हथकड़ी पहनाया। एंड टुगेदर द टू मैन क्लाम्बर्ड awkwardly into the back seat of the prison van. प्रिजन वैन का बैक सीट में दोनों बैठ गए। See you soon, Evans. It was almost as if the governor were saying farewell to an old friend after a cocktail party. फिर से मिलेंगे, ये बात सुनकर ऐसा लगा कि बड़े दोस्त कॉकटेल पार्टी में अटेंड करके बाहर आके अलविदा कहता है, ऐसा लगा। कॉकटेल पार्टी मीन्स डांस पार्टी है, दारू पीने का पार्टी है, उसी को कहते हैं कॉकटेल पार्टी। आई नो योर जर्मन इज प्रिटी गुड, सर, बट डू यू नो एनी मोर दीज मॉडर्न लैंग्वेजेस? आपका जर्मन बहुत अच्छे है सर, और कुछ भाषा के बारे में जानकारी? नॉट वेरी वेल। वाई? क्यों? Evans settled himself comfortably on the back seat and grinned happily. Nothing really. नहीं सर, यूं ही पूछा। It just happened. I just happened to notice that you have got some all-level Italian class
कमिंग अप नेक्स्ट सितंबर, दैट्स ऑल। नहीं, मैं तो इसलिए पूछा अगले सितंबर में कोई इटालियन लैंग्वेज का कोई एग्ज़ाम होगा क्या? परहैप्स यू वॉन्ट बी विथ अस नेक्स्ट सितंबर इवेंट्स। अगर होता है तो भी मुझे लगता है कि तो अगले बार हमारे साथ नहीं होंगे। जेम्स रोड्रिग इवेंट्स अपीयर्ड टू पॉन्डर द गवर्नर्स वर्ड्स डीपली। पॉन्डर मीन्स थिंक। ये शब्द वो सोचने लगा। अरे अगले सितंबर तक तुम हमारे साथ नहीं होगा, इसका मतलब मुझे कोई ऐसा सजा मिलेगा? No, Prakash, I won't use it. As the prison van turned right from Chipping Norton onto the Oxford Road, the hitherto silent prison officer unlocked the handcuffs and leaned forward towards the driver. For Christ's sake, get a move on. It won't take them long to find out. हथकड़ी खोल के उसने ड्राइवर को कुछ इशारा किया। वेयर डू यू सजेस्ट वी मेक फॉर, आस्क्ड द ड्राइवर इन ए ब्रॉड स्कॉट्स एक्सेंट। स्कॉटिश भाषा में ड्राइवर पूछा, आप अब मैं कहाँ की ओर ले जाना चाह रहे हो सर? व्हाट अबाउट न्यूबरी, सजेस्टेड इवेंट्स। इवेंट्स सजेशन दिया न्यूबरी की ओर चले। ये कहकर लेसन समाप्त किया। रीड द लेसन वेल, ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस विल बी देयर, एंड फॉर covering the objective type question you have to read the lesson as much as you can and understand everything what is mentioned, each and each word by word and line by line and sentence by sentence and paragraph by paragraph. Then only you can cover the objective type questions. Okay.